اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ میرا آج کا موضوع ہے، میرا آج کا ٹاپک ہے، تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد رکھو تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بڑی سخت ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ کہی کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ دے گا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ ناشکری کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ تو شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا قرآن مجید میں وَأَسْبَغَ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تمہیں بھرپور دی ہیں۔ کھلی نعمتیں اور چھپی نعمتیں۔ کھلی نعمتیں وہ ہیں جنہیں انسان جانتا ہے اور محسوس کرتا ہے، چھپی نعمتیں وہ ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا اور نہیں محسوس کرتا۔ بے حد و حساب چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے جسم میں اور اس کے باہر دنیا میں اس کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں، مگر انسان کو پتہ تک نہیں ہے کہ اس کے خالق اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے، اسے رزق دینے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے اور اس کے بھلے کے لیے کیا کیا انتظامات کر رکھے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ان نعمتوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھلی نعمتیں بھی ہمیں عطا کی ہیں اور چھپی نعمتیں بھی ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بے شمار نعمتیں ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے، اپنی نعمتیں گنا کر فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں اپنی گناتا ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں اس لیے دی ہیں کہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اس کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر کرو۔ شکر کے اصلی معنی ہیں
नेमत का एतराफ़ करना, नेमत को नेमत मानना, नेमत का एहसान मानना, एहसान करने वाले अल्लाह का एहसान मानना, ये है कि आदमी दिल से एहसान माने, दिल से एहसान माने, ज़बान से अल्लाह के एहसानों का इक़रार करे, ज़बान से अल्लाह की नेमतों का इक़रार करे और अपने अमल से अल्लाह के एहसान मानने का सबूत दे। इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर शुक्र बनता है। इन तीन चीज़ों का नाम शुक्र है। वो क्या हैं? नेमत को नेमत समझे, पहली बात। दूसरी बात, नेमत का शुक्र अपनी ज़बान से अदा करे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये नेमत दी है, ये नेमतें मुझे तूने अता की हैं। तो नेमत को नेमत समझना पहली बात। दूसरी बात यह है कि नेमतों का शुक्र ज़बान से अदा करना। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह के एहसान का सबूत अपने अमल से देना। उसकी तफसील आगे आएगी इंशाअल्लाह। तो इन तीन चीज़ों को शुक्र कहते हैं। मगर इंसान अल्लाह ताला से नेमतों पर नेमतें पाता है, मगर कम ही शुक्र करता है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार फरमाता है, खलीलुम मा तशकुरून, तुम कम ही शुक्र करते हो, तुम कम ही शुक्र करते हो। यानी तुम में शुक्र करने वाले बहुत कम हैं। यानी शुक्र करने वाले भी उतना शुक्र नहीं करते जितना शुक्र उन्हें करना चाहिए। लअल्लकुम तशकुरून, तुम कम ही शुक्र करते हो। यह है इंसान का रवैया अल्लाह की नेमतों के बारे में। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है कि वो देखना चाहता है कि कौन शुक्र करता है और कौन नाशुक्री करता है। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन उसका शुक्र करने वाला है और कौन है जो उसकी नाशुक्री करता है। फरमाया कुरान मजीद में, इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने रास्ता बता दिया है, अब चाहे वो शुक्र करने वाला बने या कुफ्र करने वाला बने। हमने बता दिया है दोनों बातें, दोनों बातों को हमने बता दिया है कि शुक्र की बातें क्या हैं, कुफ्र की बातें क्या हैं, शुक्र गुजारी क्या है और नाशुक्री क्या है। हमने खोल खोल कर बता दिया है। अभी इंसान पर है कि वो शुक्र गुजार बनता है या नाशुक्रा बनता है। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने रास्ता बता दिया है, अब चाहे वो शुक्र गुजार बने या कुफ्र करने वाला बने। इस आयत में शुक्र के मुकाबले में कुफ्र आया है। हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा, शाकिरों के मुकाबले में कफूरा आया है, शुक्र के मुकाबले में कुफ्र आया है। इस आयत में नाशुक्री को कुफ्र कहा गया है। इस आयत में नाशुक्री को कुफ्र कहा गया है। यहाँ इंसानों की दो किस्में बताई गई हैं। दुनिया के सारे इंसान दो किस्म के हैं, एक शुक्र करने वाले, दूसरे नाशुक्रे। ये दो किस्म के इंसान हैं दुनिया में, शुक्र करने वाले, नाशुक्रे। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो शुक्र करने वाला बने और अल्लाह का इनाम पाए, शुक्र करने वाला बनकर अल्लाह का इनाम पाए, या नाशुक्री करे और सज़ा पाए। शुक्र का इनाम है जज़ा, इनाम, और नाशुक्री की सज़ा है जहन्नुम, दोज़ख।
इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनियुन करीम वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र व इन तशकुरू यरज़हु लकुम। और आगे है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। मतलब तर्जुमा, अगर तुम कुफ्र करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो वो तुम्हारे लिए शुक्र को पसंद करता है। फिर सुनिए इस आयत को, इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनियुन करीम वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र व इन तशकुरू यरज़हु लकुम। और आगे है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अगर तुम कुफ्र करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो वो उसे तुम्हारे लिए पसंद करता है, वो दिलों का हाल तक जानता है। शुक्र ईमान का तकाज़ा है। शुक्र और ईमान, शुक्र ईमान का तकाज़ा है, ईमान का सबूत है, ईमान का एक सबूत है शुक्र। फरमाया वमा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान के तरीक़े पर चलो तो अल्लाह तुम्हें क्यों सज़ा देगा। अल्लाह बड़ा क़दरदान है और सबका हाल जानता है। यहाँ शुक्र और ईमान का एक साथ ज़िक्र हुआ है। इससे ये बात निकलती है कि शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करना ईमान का सबूत है। शुक्र के कई तकाज़े हैं। शुक्र कई तरीक़े से ज़ाहिर किया जाता है। शुक्र के कई तरीक़े से शुक्र को बयान करने के सबूत हैं। शुक्र के कई सबूत हैं। शुक्र का अव्वलीन तकाज़ा, शुक्र का सबसे पहला तकाज़ा ये है कि जिसने एहसान किया है उसी को एहसान करने वाला माने। ये पहली बात, जो एहसान करने वाला है उसी को एहसान करने वाला माने। जिसने नेमत दी है उसी को नेमत देने वाला समझे, उसे छोड़कर दूसरों को एहसान करने वाला ना समझे, उसे छोड़कर दूसरों को एहसान करने वाला, नेमत देने वाला ना समझे। नेमत देने वाले के साथ दूसरों को ना मिलाए, नेमत देने वालों के साथ दूसरों को ना मिलाए। एहसान करने वाले, नेमत देने वाले का शुक्र करे। जिसने नेमत नहीं दी है उसका क्या शुक्र, उसका शुक्र ना करे। अफ़बिल बातिली युमिनूना व बेनेमतिल्लाहि हुम यकफुरून। क्या ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं। अल्लाह की नेमत का इनकार करना, उसमें यह भी शामिल है कि अल्लाह की नेमत के साथ जो नेमत नहीं दिए हैं उनको भी शामिल करना कि उनकी तरफ से भी मुझे नेमत मिली है। ये नाशुक्री है, बड़ी नाशुक्री है, और ये हक़ बात नहीं बल्कि बातिल बात है। तो क्या तुम बातिल पर ईमान रखते हो। अफ़बिल बातिली युमिनूना व बेनेमतिल्लाहि हुम यकफुरून। क्या ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं। तो इस तरह ईमान का सबसे पहला तकाज़ा ये है कि जिसने नेमत दी है उसी को नेमत देने वाला समझे। जिसने एहसान किया है हम पर, यानी अल्लाह ताला ने, उसी को एहसान करने वाला समझे। अल्लाह की दी हुई नेमतों को, अल्लाह की
دی ہوئی نعمتوں کو اپنی قابلیت نہ سمجھے، اللہ کی دین سمجھے۔ جو نعمتیں بھی ہمیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، ہم یہ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دی ہے، یہ میں کمایا ہوں، یہ میں حاصل کیا ہوں، ایسا نہ سمجھے، یہ غلط رویہ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی قابلیت نہ سمجھے، اللہ کی دین سمجھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور قارون کے رویے بیان کیے ہیں نعمت کے سلسلے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو غیر معمولی نعمتیں اللہ نے دی تھیں، ان کو وہ اللہ ہی کی دین مانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں انہیں دی تھیں، غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان نعمتوں کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہی مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ ترجمہ، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اسی کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول قرآن مجید نقل کرتا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سوچ، ان کا رویہ۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمتیں ہی سمجھتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو اپنے لیے ایک آزمائش، ایک امتحان سمجھتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سمجھتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، اور جو کوئی اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا وہ ناشکرا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ، ان کی سوچ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی مال و دولت کے خزانے دیے تھے۔ اللہ کی دین کو قارون اپنی ہنرمندی، اپنی عقل کی کمائی سمجھتا تھا۔ قارون کہتا ہے، قرآن مجید میں اس کی یہ بات نقل کی گئی ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اس نے کہا، قارون نے، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے، یہ میری علم کا کمال ہے، یہ میرے ہنر کا کمال ہے، میں نے اسے حاصل کیا ہے ان نعمتوں کو۔ تو یہ اس کی سوچ تھی قارون کی، یہ تھا اس کا رویہ قارون کا۔ تو یہ ایک اور رویہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحیح سوچ اللہ تعالیٰ کو پسند تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ عطا کیا۔ شکر کیے تو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ انہیں دیا۔ قارون کی غلط سوچ اللہ کو پسند نہیں تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے قارون کو اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ یہ تھا اللہ کی طرف سے اس کی ناشکری کا بدلہ۔ شکر کا تقاضا یہ ہے، شکر کے کئی تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے، جس نے احسان کیا ہے، اس کی محبت سے اس کا دل بھر جائے۔ جس نے نعمت پائی ہے، نعمت پا کر جس نے نعمت دی ہے، اس کی محبت اس کے دل میں اتنی زیادہ ہو کہ اس کا دل اس کی محبت سے بھر جائے، وہ نعمت دینے والے اللہ کا وفادار ہو، اس کا فرما بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہے
वैसा करने के लिए तैयार हो नेमतें लेने के बाद। एहसान करने वाले और नेमतें देने वाले अल्लाह को खुश और राज़ी रखने की कोशिश ना करना अल्लाह की नाशुक्री है। नेमतें देने वाले अल्लाह को खुश रखने की कोशिश ना करना ये अल्लाह की नाशुक्री है। और अल्लाह ताला को खुश और राज़ी रखने का तरीक़ा ये है कि अल्लाह की फर्मा बरदारी की जाए। अल्लाह ताला जो फरमान भी दिया है अपनी किताब में और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उस फरमान को पूरा करे, उस हुक्म के मुताबिक अमल करे, ये शुक्रगुजारी है। कज़ालिका युतिम्मु नेमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। इस तरह अल्लाह तुम पर अपनी नेमतें पूरी करता है ताकि तुम फर्मा बरदार बनो। लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम फर्मा बरदार बनो, उसके हुक्म पर चलो। अल्लाह ताला ने जो नेमतें भी तुम्हें दी हैं इसलिए दी हैं कि तुम उसकी बात मानो, तुम उसके कहने पर अमल करो, जैसा वो हुक्म दे वैसी ज़िंदगी गुजारो। इसलिए अल्लाह ताला ने ये नेमतें तुम्हें दी हैं। शुक्र का एक और तकाज़ा ये है कि नेमतों को नेमतें देने वाले अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करे। नेमतों को नेमतें देने वाले अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करे, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। अल्लाह ने जो बेशुमार नेमतें हमें दी हैं, उन नेमतों को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना शुक्रगुजारी है। अल्लाह की उन नेमतों को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना उसकी नाशुक्री है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैअन व जअल लकुमुस्समाअ वल अब्सारा वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। तर्जुमा, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला इस हाल में कि तुम कुछ ना जानते थे। उसने तुम्हें कान दिए, आँखें दी और सोचने वाले दिल दिए ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ये नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, यानी उस खुदा के शुक्रगुजार बनो जिसने ये बेबहा नेमतें तुम्हें अता की हैं। इन नेमतों की, अल्लाह की इन नेमतों की इससे बढ़कर नाक़दरी और नाशुक्री और क्या हो सकती है कि अल्लाह के दिए हुए इन कानों से आदमी सब कुछ सुने मगर अल्लाह ही की बात ना सुने, अल्लाह की दी हुई इन आँखों से सब कुछ देखे मगर अल्लाह की आयात ही ना देखे, अल्लाह के दिए हुए इस दिमाग से सब कुछ सोचे मगर ये ना सोचे कि मुझ पर ये एहसानात करने वाला कौन है जिसने ये नेमतें मुझे दी हैं। ये है अल्लाह ताला की शुक्री और नाशुक्री। अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के फर्मा बरदारी में, अल्लाह ताला की रज़ामंदी में इस्तेमाल करना ये शुक्र है, और अल्लाह की रज़ामंदी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना नाशुक्री है। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र का एक और तकाज़ा ये है कि हम नेमतें देने वाले अल्लाह ही की इबादत करें। शुक्रगुजारी का तकाज़ा इबादत है। अल्लाह की इबादत अल्लाह की शुक्रगुजारी है। अल्लाह की इबादत ना करना अल्लाह की नाशुक्री है। सुनिए, बलिल्लाह फ़अबुद व कुम मिनश्शाकिरीन। इबादत और शुक्र को मिलाकर यूँ बयान किया है कि बलिल्लाह फ़अबुद व कुम मिनश्शाकिरीन। तर्जुमा, अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजार बंदों में से हो जाओ। अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजार बंदों में से हो जाओ।
تو مطلب صاف ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کرو گے تو ناشکر ٹھہرو گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اور ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یہاں بھی شکر اور عبادت کو ملا کر بیان کیا ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں. باقی باتیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ.